Good morning, dear students. So we are again here with the third and last part of your chapter photosynthesis, and in this session I'm going to explain you about carbon cycle and the experiments on photosynthesis. Now let's start with the carbon cycle. Why we are discussing here carbon cycle? Because the element carbon is very important basic constituent of all the living organisms, and even plants need that carbon in the form of carbon dioxide for synthesizing their food, and our body is also made up of this carbon because all the essential constituent of our body like carbohydrates, proteins, fats, nucleic acids, they all are made up of carbon. So carbon is a very basic constituent of all the living organism, and that's why we are organic compounds, means we are made up of carbon, hydrogen and oxygen. So we just need carbon, and indirectly we are getting that carbon from many sources. Okay, we are getting that carbon in the form of carbohydrate, proteins, fats and nucleic acids that we are having through our daily diet, and means we can say that from the plants when they are synthesizing food, and by having that food now we are having our the portion of carbon in our body. So let's discuss that how this carbon is carbon element is circulating throughout the living and non-living components in the biosphere. Okay, because the carbon is present in the form of carbon dioxide in the atmosphere, and that carbon cyclic is that cyclic process through which that carbon element is circulating continuously. Sometime it is coming to the biotic component or living component, and then again it will come into the non-biotic or atmosphere of the biosphere. So we can say that in the carbon cycle, basically it is divided into two phases: biological carbon cycle and geological. Geo means earth. Okay, so we will discuss the carbon cycle, the same which is given in your book. So let's start with the carbon cycle in nature. Okay, so here you need to understand कि कैसे बायोलॉजिकल साइकिल और जियोलॉजिकल साइकिल्स के थ्रू ये जो कार्बन है ये रोटेट होता रहता है. ओके, एटमॉस्फेयर से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में आता है, फिर वापस नेचर के अंदर आ जाता है, फिर नेचर के थ्रू ये मींस अर्थ के कंपोनेंट्स के थ्रू फिर से ये वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है. सो ये रोटेशन जो हो रहा है कार्बन का, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैलेंस ऑफ दिस कार्बन component, which is very essential constituent. So this is the carbon cycle. So first of all we will start with the atmosphere. First of all, the carbon dioxide is present in atmosphere. ओके और यह कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बोहाइड्रेट्स में या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, सो सबसे पहले नेचर से ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में कहाँ आया, प्लांट्स में. ओके, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब इन ग्रीन प्लांट्स को एज अ फूड हम लोग खाते हैं. सो ये कार्बन अब आ गया एनिमल्स में, मीन्स ह्यूमन बीइंग्स इन ऑल द एनिमल्स के अंदर अब ये कार्बन यहाँ आ चुका है. नाउ ये कार्बन अब हमारी बॉडी में आ चुका है. अब इसमें से कुछ पोर्शन ऑफ कार्बन वी आर रिलीजिंग आउट थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड विच वी आर रिलीजिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. यानी अब एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से नेचर में भेज रहे हैं, और जो ग्रीन प्लांट्स है वो भी रेस्पिरेशन करके उसको फिर से भेज रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एटमॉस्फेयर से अंदर आई है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट फिर रेस्पिरेशन के थ्रू वापस ये एटमॉस्फेयर में गई. तो ये जो साइकिल है ये क्या हो गई है, बायोलॉजिकल साइकिल. बिकॉज यहाँ पे जो साइक्लिक रोटेशन हो रहा है उसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है. ओके, सो हियर यू कैन सी रेस्पिरेशन दोनों के लिए यूज हुआ है, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स भी रेस्पायर करके कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एटमॉस्फेयर में फिल करते हैं, एंड इवन एनिमल्स भी करते हैं. और उसके बाद में जब हमारी बॉडी जो कि कार्बन से बनी हुई है और प्लांट्स की बॉडी जो कि कार्बन से बनी हुई है, वी बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है, जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो जब ये डेड हो जाते हैं, मीन्स एनिमल्स या प्लांट्स की जो बॉडी डेड हो जाती है, तो धीरे धीरे उनका क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है. मीन्स बैक्टीरियाज एंड फंगस जो है वो उनकी बॉडी को तोड़ देगी, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगी. सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से फिर से वो कार्बन रिलीज होके कहाँ आ जाएगी, एटमॉस्फेयर में आ जाएगी या सॉइल में मिक्स हो जाएगी. ओके, सो
ये क्या हो गया है, एक बायोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट हो गई है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस कि बायोलॉजिकल साइकिल से ये एटमॉस्फेयर में आई है और क्या तरीके हैं जिससे वो एटमॉस्फेयर में आ सकती है। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, अगर इनका डिकम्पोजिशन बाहर ही हो गया तो वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। बट समटाइम इट में हैपन्स कि ये जो डेड होने के बाद में ना अर्थ की डीपर लेयर में नीचे दब जाते हैं। सो जब ये डीपर लेयर में दब जाएंगे तब ये एनिमल्स और प्लांट्स की जो रेमिनेंट्स हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू द फॉसिल फ्यूल्स। ओके, यू हैव स्टडीड अबाउट फॉसिल फ्यूल। क्या होता है कि कुछ डेड एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं, वो डीप अंडर अर्थ में जब अगर बरिड हो जाए सो धीरे धीरे वो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेट्रोलियम और कोल में, कैरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल्स, ये ऑल क्या है, दे ऑल आर द फॉसिल फ्यूल्स। बेसिकली पेट्रोलियम और कोल होता है, फिर उसको धीरे धीरे उसको फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन और उसके प्योरिफिकेशन से उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पेट्रोल और कैरोसिन में। सो अब यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स में आई, फिर इन ग्रीन प्लांट्स को खा के एनिमल्स में आई, फिर रेस्पिरेशन से ये वापस चली गई, या फिर डीकम्पोजिशन हो गया बॉडी डेड होने पे तब भी वापस एटमॉस्फेयर में आ गई। कुछ जो ऑलरेडी डेड थे वो डीप अंदर बरिड हो गए और स्लो केमिकल चेंज है ये फॉसिल फ्यूल्स का बनना, इट्स अ वेरी स्लो केमिकल चेंज, और धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो गए हैं फॉसिल फ्यूल्स में। हमने अब इनको प्योरीफाई किया, प्योरीफाई करके इनसे पेट्रोल, कैरोसिन और गैसेस और एलपीजीज है वो जनरेट करी, और जब हम इनको बर्न करते हैं, means through the process of combustion of the fossil fuel, now again that carbon dioxide will come into the nature. Okay, जो हमारे व्हीकल्स के अंदर हम पेट्रोल यूज करते हैं तो उससे जो पोल्यूशन जनरेट होता है, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो जब भी बर्निंग होती है, ओके, सो जब भी बर्निंग होगी इन एनी फॉर्म, इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सो जब ये फॉसिल फ्यूल बने, इनको अब आपने बर्न करा तो ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे इससे, इसके अंदर जो प्रेजेंट है, और वो फिर से कहाँ आ जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल साइकिल, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। नाउ जियोलॉजिकल साइकिल। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है वो वाटर में भी डिजोल्व हो जाती है, और जब वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है सो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू द कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, पानी के अंदर ये कार्बोनेट में कन्वर्ट होती है, और ये पानी की जो सतह होती है वहां पे धीरे धीरे क्या होता है, विद द चेंजेस नाउ दैट कैल्शियम कार्बोनेट इन द लाइमस्टोन, इट विल कन्वर्ट इनटू द लाइमस्टोन। ओके, सो लाइमस्टोन बनेगा, जो पत्थर है उसके अंदर क्या होगा, अब ये कार्बोनेट के फॉर्म में जमा हो जाएगी। सो जब ऐसे लाइमस्टोन्स के ऊपर एनी हाउ अगर एसिड रेन फॉल होती है, सो ये एसिड रेन के थ्रू फिर से अब इन लाइमस्टोन के अंदर जो कार्बोनेट के फॉर्म में स्टोर हो चुकी है वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं, विदरिंग ऑफ रॉक्स। धीरे धीरे क्या होता है, पानी की सतह पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में डिसॉल्व होती है कार्बोनेट के फॉर्म में, और वो नीचे जमती जाती है जिससे कि लाइमस्टोन्स बन जाते हैं। इस लाइमस्टोन में क्या है, बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट है, और जब इसके ऊपर एसिड रेन का अटैक होगा तो ये इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से रिलीज कर देगा, और अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ओके, सो यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट अगर होता है तो उससे क्या होता है कि जो रॉक्स है उनमें से जो मिनरल्स है वो बाहर आते हैं, तो उससे वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर रिलीज आउट करेगा। ओके, नाउ इवन द वोल्केनिक इरप्शंस में आल्सो लीड to release of the carbon dioxide into the atmosphere. So these are some of the atmospheric changes present in the geology which will also release the carbon dioxide out. Okay, so we can say this is the whole carbon dioxide cycle और carbon cycle, जिसमें एक biological cycle है जिसमें कि वो biotic components में आई, फिर वापस non living components से atmosphere में आ गई, और geological cycle के थ्रू भी वापस से क्या हुआ है, वो ए बायोटिक फैक्टर यानी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के अंदर फिर से ऐड हो गई। So now understood students? So this is how the carbon, which is the basic constituent, it will get circulated among the biotic and abiotic components of the biosphere. So let us again discuss कि किस प्रोसीजर से, किन किन प्रोसीजर से ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिमूव होती है और किन किन प्रोसीजर से ये एटमॉस्फेयर में ऐड होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कहाँ आएगी,
थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट विल कम इनटू द प्लांट बॉडी. ओके, और इसके अलावा अगर ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं तब भी क्या होगा, थ्रू द डेड एलिमेंट्स नाउ इट विल कम इनटू द फॉसिल फ्यूल्स. या फिर ये जो एटमॉस्फेयर पे डिजोल्व है वो वाटर में डिजोल्व होकर उसका लाइमस्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, तब भी ये क्या होगा, इट विल गेट कम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द वाटर एंड रॉक्स. ओके, एंड इवन वन मोर थिंग, जो एनिमल्स की डेड बॉडीज होती है उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नीचे नीचे जम जाते हैं. सो ये क्या होते हैं, दे विल गेट कन्वर्ट इनटू द कार्बोनेट शेल्स. जो एनिमल्स के शेल्स होते हैं सी वाटर में, जो एनिमल्स हैं उनके जो शेल्स होते हैं दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन. सो उन पे भी जब एसिड रेन होती है सो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो भी एटमॉस्फेयर में आ जाती है. सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट शेल्स इन द एनिमल्स, इससे भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी और शेल्स बन जाएंगे. सो दीज ऑल आर द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेयर से रिमूव हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड. अब वापस एड ऑन कब हो रही है, रेस्पिरेशन करके हम इसको बाहर निकाल रहे हैं तो ये एटमॉस्फेयर में जा रही है. किसी भी फॉसिल फ्यूल की अगर हमने बर्निंग करी है तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो एटमॉस्फेयर में जा रही है. एसिड रेन या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो लाइमस्टोन से जो रिलीज होगी वो वापस कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द प्रोसेस बाय विच द कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट addition in the atmosphere. So this is all about your carbon cycle. Now come to the next topic, that is the experiments to test for the factors involved in the photosynthesis. So we have already discussed the procedure of photosynthesis and what are the different factors which are involved in it, that a plant need sunlight, chlorophyll pigment and carbon dioxide, okay, for the process of photosynthesis, and as a byproduct it will synthesize the glucose molecule and it will also release oxygen. That oxygen will diffuse out in the atmosphere. So here we will conduct some experiments to prove that thing and to test that whether it is true or not. Okay, so here we need to understand that the main byproduct is glucose. So in the plants, when they will do the photosynthesis, they will synthesize that glucose molecule, and that glucose molecule then it will get stored in the form of starch. That also we have discussed in the previous session. So यहाँ पे क्या है कि photosynthesis का experiment करने के लिए we need to test for the starch presence. अगर स्टार्च प्रेजेंट है देन इट इज जस्ट प्रूविंग दैट द प्लांट हैज डन द फोटोसिंथेसिस, और अगर स्टार्च एब्सेंट है देन इट इज प्रूविंग कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर नहीं हो रहा है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप कंडक्ट कर रहे हो किसी भी प्लांट के अंदर या प्लांट की लीव्स के अंदर, देन यू नीड अ वन बेसिक स्टेप to continue the process, to continue that experiment on photosynthesis. First step क्या रहेगा, de-starching. What is the meaning of de-starching? De-starching का मतलब है कि प्लांट के अंदर जो पहले से स्टार्च प्रेजेंट है उस स्टार्च को रिमूव करना है कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले, बिकॉज दैट प्रेजेंस ऑफ प्रीवियस स्टार्च विल डेफिनेटली इंटरफेयर विद द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट. So that starch is an evidence of photosynthesis. So it should not have starch in its leaves before the experiment is started. Okay, so जिस भी प्लांट या लीव्स के अंदर आपको फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करना है सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसका डिस्टार्चिंग करना होगा. मीन्स उसमें जो पहले से बना हुआ स्टार्च है उसको रिमूव करना होगा जिससे कि हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स फ्लक्चुएट ना हो. एंड फॉर दैट डिस्टार्चिंग व्हाट यू नीड टू डू, अगर आप किसी पॉटेड प्लांट के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं देन जस्ट कीप दैट पॉटेड प्लांट इन अ डार्क प्लेस फॉर 2 to 3 days. सो इन दिनों में वो क्या करेगा, अपना जो ऑलरेडी स्टोर्ड स्टार्च है उसको पूरा यूटिलाइज कर लेगा और अब लीव्स के अंदर डिस्टार्च लीव हो जाएगी. मीन्स उनमें स्टार्च की प्रेजेंस नहीं होगी, बिकॉज जब आपने उसको 2-3 days के लिए डार्क प्लेस में रख दिया है सो अब प्लांट फर्दर अपना नया ग्लूकोज और स्टार्च नहीं बना पाएगी. Okay, so for potted plant you need to leave that in a dark place for 2 to 3 days, or if you are conducting on any plant in a open then you can also destarch that plant by wrapping it with the aluminum foil for 2 days, क्योंकि aluminum foil के थ्रू फिर सनलाइट उस प्लांट के ऊपर नहीं होएगी और वो आगे फर्दर सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा. Okay, so is it clear now? The first step in conducting any experiment in the photosynthesis is the destarching procedure. Now let us start with the first experiment to test a leaf for the presence of starch. अब किसी भी प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो मेन एविडेंस है, जो मेन प्रूफ है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च.
So how can we test for the presence of starch? For this, first of all, we just need a one fresh green leaf, detach it from the plant, okay, and then dip it in a boiling water for 1 minute. ओके अब हम इसको बॉइलिंग वाटर में क्यों डिप कर रहे हैं? जिससे कि उसके अंदर जितने भी सेल्स और प्रोटोप्लाज्म है वो सारे के सारे डेड हो जाए, जितने भी एंजाइम्स है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाए, जिससे कि अब फर्दर केमिकल रिएक्शन ना हो पाए. ओके हमें जो पहले से बना हुआ स्टार्च है उसकी प्रेजेंस को टेस्ट करना है. तो अब फर्दर रिएक्शंस ना हो, इसलिए कोई और दूसरी रिएक्शन ना हो सेल्स में, तो उन सेल्स को पहले किल कर दिया जाता है बॉइलिंग वाटर में रखने के लिए. सो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज वहीं पे स्टॉप हो जाए. Then you need to boil this leaf in a alcohol, methylated spirit और ethyl alcohol के अंदर इसको आप बॉईल करना है. उसके लिए आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में उसी लीफ को जिसको आपने पहले बॉइलिंग वाटर में बॉईल किया हुआ है, अब उस लीफ को एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट फिल्ड है उसमें आपने उसको रख देना है और उसको बॉईल करना है. ओके एंड बाय बॉइलिंग इट इन द इथेनॉल, नाउ इसमें से जितने भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो अब डिजॉल्व हो जाएंगे और एल्कोहल में आ जाएंगे, और अब इसमें से जितने भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव हो जाएंगे. सो वी आर डूइंग दिस बॉइलिंग ऑफ लीफ इन द अल्कोहल फॉर द रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट लीफ. ओके एंड व्हाई इट इज नेसेसरी दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. नाउ फिर से आप इसको ये अब यहाँ पे इसको जब अल्कोहल में बॉईल करोगे तो ये बहुत ही हार्ड और ब्रिटल हो जाएगी, टूटने जैसी हो जाएगी. तो उसको थोड़ी देर के लिए फिर से आप हॉट वाटर में रख दीजिए जिससे कि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए. और उसके बाद में यू हैव टू परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट. मीन्स अब ये जो अल्कोहल के अंदर बॉईल करी हुई लीफ है, अब उसको आपने एक पेट्री डिश में लीजिए और उसके ऊपर just pour few drops of iodine solution on it. Okay and then what will happen, अगर उसके अंदर starch present होगा then that leaf will become blue or black in color, or if the starch is not present then it will shows only the simple brown color. Okay so this is a simple iodine test for the presence of starch. Now here I just want to explain you कि यहाँ पे क्लोरोफिल को क्यों रिमूव किया गया. बिकॉज अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा यहाँ पे तो हम प्रॉपरली उसका कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आफ्टर पोरिंग द आयोडीन सॉल्यूशन. सो ये ग्रीन कलर को रिमूव करने से वो कलरलेस हो जाएगी, और जब कलरलेस हो जाएगी तो उसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे दैट ब्लू ब्लैक कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च by pouring that iodine solution on it. Okay so these are the step for the starch test. और ये स्टार्च टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप किसी भी फैक्टर को अगर टेस्ट कर रहे हैं तो फाइनली वी वांट टू डू दैट स्टार्च टेस्ट फॉर द एविडेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर. सो वी विल रिपीट दिस टेस्ट आफ्टर हैविंग एवरी एक्सपेरिमेंट. नाउ लेट्स start with the first experiment, that is to show that chlorophyll is necessary for the process of photosynthesis. Now here for this process we just need variegated leaves. What is the meaning of variegated leaves? Variegated leaf का मतलब होता है पार्टली येलो और पार्टली ग्रीन इन कलर, यानी ऐसी लीफ जिसमें जो क्लोरोफिल है वो पैचेस में प्रेजेंट हो, कहीं कहीं पे प्रेजेंट नहीं है और कहीं कहीं पे प्रेजेंट हो. ओके सो क्रॉटन प्लांट्स और कॉलियस प्लांट, दीज आर द एग्जाम्पल जिसके अंदर ऐसी लीव्स आपको इजीली विजिबल हो जाएगी. ओके एंड यू कैन ऑल्सो सी सच काइंड ऑफ लीव्स इन मैनी अदर प्लांट्स ऑल्सो. सो आप क्या करेंगे, एक ऐसी ही वेरीगेटेड लीफ लेंगे. ओके और उसको आपने सबसे पहले क्या किया है, एक प्लांट जिसको जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें ऑलरेडी वेरीगेटेड लीव्स अटैच्ड है, सो उस प्लांट को फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डी स्टार्च. सबसे पहला क्या काम करना है, डी स्टार्च करना है. डी स्टार्च करने के बाद में आप उस प्लांट को फिर से सनलाइट में रख देंगे. फिर से सनलाइट में रखेंगे तो जो ग्रीन पोर्शन है दैट विल परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, बट जो येलो पोर्शन है जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट है उस एरिया में बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस अब नहीं होगा. ओके देन डिटैच वन ऑफ दैट वेरीगेटेड लीफ. ओके और अब ये जो जिसमें जहाँ जहाँ पैचेस पे येलो कलर है उसकी आप एक ड्राइंग बना लेंगे, एक आउटलाइन बना लेंगे किसी पेपर पे, सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द ब्लू ब्लैक कलर और अ ब्राउन कलर, मीन्स वेदर दे आर शोइंग द सेम रीजन और नॉट. ओके देन अगेन वी हैव टू परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट. स्टार्च टेस्ट में वापस हमने क्या किया है कि ये जो लीफ है इसको फिर से हमने थोड़ी देर के लिए बॉईल किया, उसके बाद में इसको अल्कोहल में बॉईल किया, देन वी प्लेस इट अगेन इन द बॉइल्ड वाटर टू मेक इट सॉफ्टन, एंड फाइनली वी विल पोर द आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट सो दैट द रीजन विच इज हैविंग द स्टार्च
then it will convert into the blue black color. Otherwise, which is not having the starch, then it will show only brown color. So here you can see जिस जिस एरिया के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट था वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं ऑब्जर्व हुआ है. ओके, दैट एरिया अनअफेक्टेड बाय स्टार्च टेस्ट विल शो द कलरलेस पोर्शन और ब्राउनिश कलर, और एरिया विच इज हैविंग द स्टार्च, क्योंकि जहाँ जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, सो दैट विल टर्न इनटू द blue black color. So this is the experiment which will show that chlorophyll is very very necessary for the process of photosynthesis, because this is the only pigment which will absorb the sunlight in the form of photons. Next experiment is to show that sunlight is necessary for the process of photosynthesis. Now for this experiment also we just need a de-starch potted plant, and for this we just placing it in a dark for the 2 days. Okay, and then what we have to do, we have to take a black paper and cut out any design of your desire and just make it as a stencil. Then cover any one leaf from both the sides with such paper by clipping it with the help of paper clips. Okay, so by doing this we are just avoiding sunlight in some portion of the leaf. Okay, and then when we will perform the starch test, we will observe that only the part of leaf that could get a light through the cutout design or other exposed portion, only these parts will turn blue black with the iodine solution, and the portion which is covered with the black paper, it will not get the sunlight, and as a result it will show negative test for the starch test. Okay, so this is just proving that sunlight is very very necessary for the process of photosynthesis. Now the next experiment is to show that carbon dioxide is necessary for the process of photosynthesis, and for this again take a de-starch potted plant. Okay, and take one conical flask and then put some of the potassium hydroxide in it. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी. सो इस एरिया के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी. ओके, देन जस्ट फिट वन ऑफ द लीफ और इंसर्ट वन ऑफ द लीफ विद द हेल्प ऑफ एनी स्प्लिटिंग कॉर्क. ओके, स्प्लिटिंग कॉर्क की हेल्प से एक लीफ को अब इसके अंदर फिक्स कर देंगे. ओके, देन जस्ट लीव दैट सेटअप इन अ सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स सो दैट ये प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर पाए. आफ्टर फ्यू आवर्स take out this leaf from the conical flask and remove it, and take one more leaf from the same plant which has done the photosynthesis process, and then we will test both the leaves for the presence of starch, and we will observe कि जो leaf conical flask के अंदर थी that will not turn blue black because it is not having carbon dioxide, so it won't be able to perform process of photosynthesis, and the leaf which was exposed to the atmosphere, it will turn blue black because it will absorb the carbon dioxide through the atmosphere. So this is showing that carbon dioxide is also necessary for the process of photosynthesis. Last is to show that oxygen is giving out during the process of photosynthesis. To conduct this experiment, we just need some aquatic plants like Hydrilla or Elodea. Okay, take these aquatic plants and keep it in one beaker full of water. Okay, here you can use either the diluted sodium hydrogen carbonate solution which will provide the carbon dioxide in this water, or you can use the pond water. Simple pond water can also provide the carbon dioxide dissolvent. Okay, then just cover this Hydrilla plant with any short stemmed inverted funnel. Okay, उस funnel की help से उसको आपको cover कर देना है. Okay, and then rise the level of the water so that water can easily circulate around it. Then take one test tube and fill it with water, and then insert that test tube over that stem of the funnel. Okay, उसके ऊपर एक test tube जिसमें water भरा हुआ है उसको आपको invert करके उसके ऊपर place कर देनी है. Okay, now just keep that apparatus in sunlight for few hours so that the plant can do the process of photosynthesis. Then what we will observe, that the bubble of gases which are releasing out from the stem of this funnel, they are rising in this test tube, and then after few hours जब हम इस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालेंगे by pressing the thumb over it and just keep it out and make sure that any other air उसके अंदर पहले trap नहीं होनी चाहिए. So this test tube will carry only that particular gas which will be released by this plant during the process of photosynthesis. Now we have to test that gas present in this
test tube, and for this we can use any one splinter. Okay, and then when we will keep that splinter over it, then it will burst into a very good flame, because oxygen जो वो है वो combustion को support करती है. And you can also use alkaline pyrogallol solution, क्योंकि जो alkaline pyrogallol solution होता है वो जब ऑक्सीजन को absorb कर लेता है, so उसका कलर ब्राउन से कलरलेस हो जाता है. So here you can do the test of this gas by two methods. Either just put a splinter over it, so वो ग्लो करेगा, ओके, उसकी फ्लेम बढ़ जाएगी, विच इज प्रूविंग दैट दिस गैस इज ऑक्सीजन. और यू कैन ऑल्सो यूज एल्कलाइन पायरोगैलॉल, जो कि क्या होगा, ब्राउन से कलरलेस कन्वर्ट हो जाएगा. Okay, so this is the experiment which is showing that yes, oxygen gas is given out during the process of photosynthesis. So here we have completed our chapter, and I really expect that all of you have already gone through the portion which we have completed, and now you will read the same content from your book also. Just go through the full chapter and solve your full book exercise and ask me if you have any doubts. Thank you so much.